बांग्लादेशी टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया जा रहा है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस वक्त वहाँ पर शिरकत के लिए मौजूद हैं। बांग्लादेशी टीम से मुलाकात कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम से मुलाकात कर रही हैं। और आपको बताएं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम करवाया है। So yesterday I was watching in Bajaj and mashallah we played very good, I must accept. And Bangladesh has come up as a very good team. It's been playing the world and it's been doing very well for themselves. So I'm really happy to see Bangladesh. I'm on the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. Somehow we managed to break each other's heart. Now the whole emphasis of our government is to mend the heart again. The nation of Bengal, one of the oldest nations in this region, one of the richest nations in this region in the history, and we intend to try and work on it. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions. We can work together, we can do things together, and obviously I don't need to remind you that Bangladesh is a success story in the world. Everybody knows that, everybody's seen that happening, and I'm grateful to God. Allah has given you all such a strength, mashallah, financially and physically. So we feel that soon you all are going to be on your trajectory to go up as far as exports are concerned, as far as business is concerned, and we'll contribute as much as we can. We will also want to do with Pakistani businessmen, also want to work with you all, work with Bangladesh government. My government is also willing to work with your Bangladeshi government. So, inshallah, I see a good future in our both nations and both countries. But cricket is a sport which brings everybody together throughout the world. So I'm happy to host you all in Pakistan, in Lahore, and I'm hoping that there'll be many trips. We go to Dhaka also. I'd love to come to Dhaka for one. So I haven't seen it for a long time. I haven't been there for a long time. I still have Bengali friends who come to me in Pakistan, and I've kept in touch. They were with me in Pitaro, Cadet College Pitaro, where I went to study, and then they keep in touch with me while coming and going. I remember the three brothers, Mahmood Rahman, Masood Rahman, and youngest was too young for me to remember his name. I know his nickname, which I don't want to say. So anything, Ambassador, anything I can do, whenever, however, wherever, please, all you got to say is call and I'll be available to you. As far as my own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. So, Allah is great. Hope both of you teams have a successful careers, all you youngsters have a successful careers. The world is young, you are young, and it's your time.
We've seen our time. This is your time. All of you are going to see the future, and I bless you, and I hope that you'll have a eventual good future. So, kamana che, bhalo che. Thank you very much. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के एजाज़ में दिए जाने वाले इस्तकबालिये से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। मैं इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा है। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी बेहतरीन खेल पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी तौर पर इस इस्तकबालिये में शिरकत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस इस्तकबालिये का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। लाहौर से मनाज़िर आप देख रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एजाज़ में दिए जाने वाले इस्तकबालिये में उन्होंने शिरकत की है और साथ ही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। खबर दें आपको, हमने कार्रवाई में गलती को दुरुस्त किया। 2 दिन बाद दोबारा तैयारे उड़ाए और निशाने लगाए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्ज़िये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रही हैं। सदर ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी की बात भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है। जंगबंदी की शराइत क्या हैं, कब तय हुई, आवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज़फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। आपको बताएं, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी पर सवाल उठा दिया है। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जाए, उनका ये भी कहना था। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालिबा सामने आ गया। सिख तंजीमों ने G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालिबा कर दिया। CBC न्यूज़ के मुताबिक कैनेडा G7 के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमरीका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शिरकत करेंगे। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि जब तक भारत कैनेडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन ना करे उसे मदऊ ना किया जाए। आला अस्करी हुकाम के असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। पाक फौज के आला हुकाम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तों का इनेकाद किया। कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। कोर कमांडर्स ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वे जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर जोर दें और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। आपको बताएं, अहम नशिस्तों का सिलसिला जारी है। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। कोर कमांडर्स की जानिब से कहा गया। आला अस्करी हुकाम के असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तों का सिलसिला जारी है। आपकी खारिजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा का ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारिजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सिफारती फतह हर मुल्क पाकिस्तान से मुआहदे कर रहा है और भारत तन्हाई का शिकार है। मोदी अपनी हर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हाथों अपनी बदतरीन शिकस्त को छिपा नहीं सकता। आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुवैत, ईरान और दीगर गल्फ ममालिक भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। पवन खेरा ने ऐसा कहा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान हो गए। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया, जबकि गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। अवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुके हैं। भारतीय अवाम के मुताबिक दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं? मोदी मुसलमानों को गद्दार दिखाकर हिंदुओं का वोट हासिल करेंगे। गोदी मीडिया लाहौर और कराची में चाय पीने के झूठे दावे करता रहा। मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए, मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई।
भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान हो चुके हैं। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया, जबकि गोदी मीडिया ने भी सच को छुपाया। अवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुके हैं। अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मोदी मुसलमानों को गद्दार दिखाकर हिंदुओं का वोट हासिल करेंगे।